Good morning, all of you. I am Sharik sir, your English teacher, and today I am going to teach you a very beautiful poem with the title The Heart of a Tree, written by Henry Siler Burner, an English novelist, journalist, and a poet. As you will go through the title itself signifies that the poem is all about the importance of planting a tree. It is relevant to our modern times because in the pursuit of urbanization we have totally disconnected ourselves from the nature. ठीक है, हम लोग टोटली जो है क्या हो गए हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए. वी आर नॉट केयरिंग अबाउट द नेचर. एंड पोएट टेल्स अस दैट if we maintain a harmonious relationship with nature, the best thing to do that is by planting a tree, because tree will automatically maintain the ecological balance and it will restore our earth totally. So that's why this poem is very important, and it is all about the importance of and usefulness of planting a tree. So if we talk about the poem, the poetic device which is used in this poem is a refrain. What is refrain? What does this term means, refrain? Refrain means when in a poem some line is repeated again and again, that poetic device is known as refrain. If we go to the poem, so the poem begins with a simple question which the poet asks in the first stanza, that what does he plant who plant a tree? Means the poem begins with a simple question. The poet asks the simple question and he himself gives the answer of that question by recounting the number of benefits of planting a tree. Means he is asking from us that what a person plant actually in the form of a plant or in the form of a tree. Means when a person is planting a tree, what does he himself plant? So he is answering this question by recounting you number of benefits. He said he plant a friend of sun and sky. How a tree is a friend of sun and sky? As you all know that plant makes its own food through the process of photosynthesis, है ना? With the help of sunlight. Photosynthesis means it is a process or phenomena in which plant makes their own food with the help of sunlight, water, air, etc. So in this manner, plant is a friend of sun. And how a plant is a friend of sky? It will reach high, है ना? It will absorb the carbon dioxide from the environment and gives you fresh oxygen. So in this way, the plant is a friend of sun and sky. The next line is he plant the flag of breezes free. Means if we are planting a tree, we are planting simply a flag. For whom? We are planting a flag for the breezes free. Breezes means cooled winds. कूल विंड्स को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीजेस कहेंगे. जो ठंडी ठंडी हवा के झोंके होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीजेस कहते हैं. सो वी आर सिंपली प्लांटिंग अ ट्री. वी आर सिंपली प्लांटिंग अ ट्री इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्लैग फॉर द ब्रीजेस फ्री. हाउ अ ट्री सर्व्स एज अ फ्लैग फॉर द ब्रीजेस? कैसे पेड़ जो है एक फ्लैग के तौर पे सर्व करता है ब्रीजेस के लिए, कि जब पेड़ रीच करता है हाइट और ब्रीजेस को वो रिसीव करता है तो ब्रांचेस जो है ट्रीज की जिसपे लीव्स ग्रो की हुई है वो क्या करती है? टू एंड फ्रो मूव करती है और फ्लटरिंग करती है, ऐसे जैसे कि कोई फ्लैग फ्लटर करता है. किसमें? कूल्ड विंड्स में और ब्रीजेस में, जब विंड्स ब्लो करती हैं. ठीक है. सो इन दिस मैनर वी आर प्लांटिंग अ फ्लैग फॉर द ब्रीजेस फ्री. देन द नेक्स्ट लाइन इज द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई. शाफ्ट मीन्स अ नैरो पोल और स्टिक. हम लोग क्या कह सकते हैं शाफ्ट को? अ नैरो पोल. ठीक है. सो वी आर प्लांटिंग अ शाफ्ट ऑफ ब्यूटी, मीन्स अ पोल ऑफ ब्यूटी. इसका मतलब क्या हुआ पोएट का? कि इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री वी आर प्लांटिंग अ ब्यूटिफुल पोल, जो कि इफ यू विल सी अ ट्री इट लुक्स गुड. इट इंक्रीज द नेचुरल pleasure of the environment, or it enhance the scenery of that place. So we are planting a very beautiful pole
ऑफ ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। हम लोग पेड़ के रूप में, पेड़ के फॉर्म में एक बड़ी खूबसूरत सा पोल फिक्स कर रहे हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, क्योंकि जहां पर भी आप पेड़ लगाते हो उस जगह की खूबसूरती ऑटोमेटिकली नेचुरल ब्यूटी इनहैंस कर जाती है, ग्रो कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इन दिस फॉर्म वी आर प्लांटिंग अ पोल ऑफ ब्यूटी, अ शाफ्ट ऑफ ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। द नेक्स्ट लाइन इज he plant a home to heaven and I, means we are planting a home heaven and I means near, and I means near by, ठीक है, and I means nearby. So we are planting a home near the heaven, because how we are planting a home near the heaven, because the plant will reach, grow and it will reach to the sky. वो क्या करेगा, ग्रो करेगा ईयर्स बाय ईयर्स में, और वो क्या करेगा, वो रीच करेगा कहां पर, वो रीच करेगा स्काई में, और जिससे क्या होगा, इट विल ग्रो नियर टू द स्काई एंड इट लुक्स दैट वी हैव प्लांटेड अ होम नियर द हेवन। फॉर whom? फॉर द मदर क्राउन ऑफ बर्ड, ठीक है, फॉर whom? फॉर द मदर बर्ड who will sing a song for their baby birds. There the word is used croon, croon. Croon means a song which is sing by the birds, by the mother birds for their babies, a humming low voice which a bird produce, ठीक है। So we are planting a home near the heaven. The next line is for song and mother croon of bird, for the singing of mother bird for their baby bird, है ना। Getting my point? If you have any doubt, you can clear it by posting a comment. In hushed and happy twilight heard. Hushed means silent. Twilight is the part of the day when the sun has set. तो जब सूरज डूब जाता है एंड हल्की सी जो लाइट, फेडेड लाइट जो बचती है शाम के वक्त, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट टाइम इज नोन एज ट्यूलाइट। जैसे मगरिब का वक्त होता है, आपको अगर ऐसे समझाएं हम, तो सूरज सेट कर जाता है, उसके बाद डार्क, टोटली स्काई डार्क नहीं होता है, एनवायरमेंट आपका क्या होता है, हल्का सा जो है एनवायरमेंट आपका डार्क होता है और हल्की सी फेडेड लाइट जो है वहां पर बचती है। तो इसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी टाइम को हम लोग कहते हैं ट्यूलाइट। एंड इट इज अ हश्ड एंड हैप्पी ट्यूलाइट हर्ड, ठीक है। So when a bird sing a song for their baby bird during a silent and a twilight, because bird return to their home, to their nest over the trees in the evening time. आपको पता है चिड़िया जो है अपने घर लौटती है शाम के वक्त, और वो क्या करेंगी, अपने घोंसले में जो कि उन्होंने पेड़ पे बनाया है वहां पे बैठ के वो अपने बेबी बर्ड्स के लिए सॉन्ग सिंग करेंगी। और जब वो ये सॉन्ग सिंग करती है इन द हश्ड मीन साइलेंट इन्वायरमेंट पर, कामनेस पर, एक स्टिल इन्वायरमेंट पे, तो और हैप्पी ट्यूलाइट आवर्स में, मतलब एट द इवनिंग टाइम, द ट्रेबल्स ऑफ हेवेंस हार्मनी, ठीक है। द ट्रेबल्स ऑफ हेवेंस हार्मनी मीन्स, ट्रेबल मीन्स अ हाई पिच्ड सॉन्ग और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, हाई पिच्ड, ठीक है। एंड इट विल क्रिएट अ हार्मोनियस इन्वायरमेंट। जब चिड़िया जो है गाना गाएंगी पेड़ पर बैठकर शाम के वक्त साइलेंट इन्वायरमेंट में, हश्ड इन्वायरमेंट में, तो इट विल क्रिएट अ हार्मोनियस इन्वायरमेंट नियर over that place, near that place or over that place where you have planting a tree. So it will increase the aesthetic pleasure of that place, है ना। So these are the things which a person is planting in the form of a tree. So last line, these things he plant who plant a tree. The last line of this stanza is, these things he plant who plant a tree. So poet has given you the answer of the question which he has asked you at the top of the stanza, in the first line of the stanza. What does he plant who plant a tree? So person is planting a friend of sun and sky. A person is planting a flag for bees free. A person is planting a shaft or a pole of beauty, towering high, reaching tall. And near the heaven, we are planting a home near the heaven for the mother bird who will sing a song during the silent environment, during the twilight, in the silent environment, and it will create a harmonious environment all over or nearby. So these are the things
which a person is planting in the form of a tree. Got it? This is the first stanza which I have explained you. Now we will go through the second stanza. The second stanza again begin with the same question, that what does a person plant who plant a tree? Same question. The same question the poet is asking in each stanza in order to recount you more benefits of the tree, ताकि आपको क्या कर सके, और भी ज्यादा बेनिफिट्स प्लांटिंग ट्रीज के आपको गिनाया जा सके. तो पोएट वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और आपको उसका जवाब दे देकर खुद से ही आपको पेड़ों के इंपॉर्टेंस को, यूजफुलनेस को गिना रहा है, रिकाउंट करा रहा है. सो ही प्लांट कूल शेड एंड टेंडर रेन. So we are planting in the form of a tree. If a person is planting a tree, it is planting a cool shade, है ना? क्योंकि आपको पता है during the summer time, है ना? If you will sit under a tree, it will gives you cool shade. ठंडी ठंडी छांव आपको मिलती है पेड़ों के नीचे, है ना? And a tender rain. Tender means gentle. We are also planting a source of a gentle rain. अब जो ट्रीज हैं वो कैसे सोर्स हैं जेंटल रेन के, समझिए इस बात को. जो ट्रीज की लीव्स हैं उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है जो पेड़ की लीव्स में होती हैं. इससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और वही क्लाउड जब कंडेंस होता है तो वो रेन के फॉर्म में, जेंटल रेन के फॉर्म में इस एनवायरमेंट में जो है लैंड पर वो बारिश के फॉर्म में बरस जाता है. सो वी आर प्लांटिंग a cool shade in the form of a tree and a source of gentle rain. हम लोग क्या लगा रहे हैं, gentle rain का source लगा रहे हैं, because tree will maintain the ecological balance too, and it will maintain the environment, it will control the pollution and it will create a timely rain, है ना? बारिश टाइम टू टाइम होती रहेगी जब environment में ecological balance maintain रहेगा. तो we are also planting a source of a tender gentle rain in the form of a tree. The next line is, and seeds and buds of days to be and years that fade and flush again. So we are planting also seeds and buds for the years. मतलब आगे सालों के लिए जब वक्त बीतेगा तो यही बीजों से, यही कलियों से क्या होगा, नए पेड़ दोबारा ईयर्स में, फर्दर ईयर्स में आगे क्या होंगे, जब पेड़ सूख जाएंगे, ड्राइड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो इन्हीं बीजों से, इन्हीं कलियों से, इन्हीं फलों से क्या होगा, नए पेड़ जो है दोबारा फ्लैश अगेन हो जाएंगे. इट विल ग्रोस अगेन फ्रॉम दैट सेम सीड्स एंड फ्रॉम दैट सेम बड्स. तो वी आर प्लांटिंग ऑल्सो अ सोर्स फॉर अनदर ट्री, है ना? एक पेड़ लगा के हम लोग कई पेड़ों का जरिया लगा दे रहे हैं, कई पेड़ों का जरिया बना दे रहे हैं कि एक पेड़ लगाया, उन्हीं के फलों से, उन्हीं के बीजों से, उन्हीं की कलियों से क्या होगा, जब ये पेड़ ड्राइड हो जाएगा, सूख जाएगा, तो आगे नए पेड़ इन्हीं पेड़ों से क्या हो जाएंगे, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे. तो दीज आर द थिंग व्हिच अ पर्सन इज प्लांटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री. ये सारी चीजें इंसान लगा रहा है. द नेक्स्ट लाइन इज, ही प्लांट द ग्लोरी ऑफ द प्लेन. मीन्स ग्लोरी मीन्स प्राउडनेस, है ना? किसी चीज की शान, है ना? तो वी आर प्लांटिंग अ ग्लोरी ऑफ द प्लेन एरिया, ठीक है, ऑफ अ लैंड, ऐसे भी कह सकते हो लैंड की. तो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री वी आर प्लांटिंग अ ग्लोरी ऑफ द प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस वेयर यू फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रीज, द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. अब जैसे कि अगर हम आपसे ही बात करें कि आप लोग टहलने जाते हो या आपके पेरेंट्स लोग टहलने जाते हैं, तो वो कंपनी गार्डन में जाते हैं, खुसरू बाग में जाते हैं, वो रोड पर ऐसे या किसी डिजर्टेड प्लेस पे नहीं टहलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर पेड़ है और उस पेड़ों ने उस जगह के नेचुरल प्लेजर को, एस्थेटिक प्लेजर को इनहांस कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उस प्लेन एरिया की वैल्यू बढ़ा दी है. तभी आदमी जो है, अब कंपनी बाग में भी, कंपनी गार्डन में जाता है, टिकट लगता है, फिर भी आदमी टिकट परचेज करके वहां पे जाता है टहलने के लिए, वहां के एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए. तो ऑटोमेटिकली इन पेड़ों ने, क्योंकि वहां पे लॉट्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड है, तो इन पेड़ों ने, इन ट्रीज ने उस जगह की वैल्यू को, इंपॉर्टेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है. तो यही बात यहाँ पे हो रही है. प्लांट विल ऑल्सो इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ द प्लेन. जो प्राउडनेस है, ग्लोरी है, शान है, वो उस जगह की बढ़ जाती है पेड़ों के लगने से. The next line is, he plant the forest heritage. Forest heritage means that how plant serves the forest heritage. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें, if you will plant a single tree, it will, as I have earlier discussed in the above line, that it will give you seeds, it will give you buds, and from that seeds of that plant, from that buds of a single plant, new plants or many plants
विल ग्रो फर्दर, है ना। क्या होंगे, इन्हीं बीजों से, इन्हीं कलियों से और पेड़ क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और यही जब पेड़ और ज्यादा ग्रो करेंगे, इट विल सेटल अ होल फॉरेस्ट, इट विल कन्वर्ट इनटू अ होल फॉरेस्ट। वो क्या होगा, एक पेड़ से आप क्या है कि पूरे जंगल को बसा दोगे। तो वी आर प्लांटिंग अ फॉरेस्ट हेरिटेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेड़ लगा के पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। द हार्वेस्ट ऑफ द कमिंग एज, द बेनिफिट्स and the trees will also provide the benefit to the coming age. The harvest for the coming age, मतलब the benefit will also be enjoyed by the coming age too, because tree will keep on multiplying, keep on growing, and it will keep providing the benefit to the coming generation to, coming age to, जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी वो बेनिफिट देता जाएगा। The joy that unborn eyes shall see, वो जॉय, वो प्लेजर, वो बेनिफिट्स जो हमारी अनबॉर्न जनरेशन है, मतलब वो अनबॉर्न आइज मींस जो जनरेशन अभी बॉर्न नहीं की है बट फ्यूचर जनरेशन बनने वाली है, वो फ्यूचर में बॉर्न करेंगी। तो वो सारा जॉय जो आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ट्रीज के, वो फर्दर जनरेशन भी क्या कर पाएगी, इन बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाएगी। सो दीज आर द थिंग्स अ पर्सन इज प्लांटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। तो लास्ट लाइन फिर से पोएट रिपीट कर रहा है, दीज थिंग्स ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। ठीक है, तो ही गिव्स यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच ही हैज आस्क्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टैंजा, दैट व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। दीज आर द थिंग्स ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। ये सारी चीजें पर्सन प्लांट कर रहा है जो पेड़ों को लगा रहा है। क्या क्या प्लांट कर रहा है, नेक्स्ट स्टैंजा में क्या क्या बेनिफिट्स पोएट ने, क्या क्या इंपॉर्टेंस रिकॉल किया यहाँ पर। वी आर पर्सन इज प्लांटिंग कूल शेड एंड टेंडर रेन, ठंडी ठंडी छांव, जेंटल रेन का सोर्स, सीड्स एंड बर्ड्स जिससे आगे और पेड़ ग्रो करेंगे। वी आर सेटलिंग अ ग्लोरी ऑफ द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। वी आर सेटलिंग अ होल फॉरेस्ट हेरिटेज बाय प्लांटिंग अ सिंगल ट्री, बिकॉज द ट्री विल मल्टीप्लाई एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ होल फॉरेस्ट। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ बेनिफिट्स टू the next generation or future generation also, because the benefit of the tree will also be enjoyed by the next generation also. Tree will live long and it will keep giving its benefits to the next generation also. So these are the things which the poet recounted in the next stanza, in the second stanza. ठीक है, the next third stanza begin with the same question, that what does he plant who plant a tree, मतलब what does a person plant if he plant a tree, in order to recount to you more benefit of the tree. पेड़ों के बेनिफिट अभी पोएट ने रिकाउंट करना रोका नहीं है, वो अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन ही इज रिपीटिंग एंड गिविंग यू नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, दैट इफ अ पर्सन प्लांट अ ट्री इट विल सर्व different benefits to the human beings, to the society. So what does he plant who plant a tree? He plant in saps, leaves and woods. So these are the different products which we obtain from a plant. We obtain saps. Sap means liquid of the plant. जैसे रबर प्लांट होता है, उससे आपको क्या मिलता है, रबर के फॉर्म में लिक्विड मिलता है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में, रबर के प्रोडक्ट्स बनाने में यूजफुल होता है। तो वी आर गेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड टू, एंड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स टू। जैसे नीम की लीव्स है, हर्बल ट्रीज, नीम्स की लीव्स हो गई, तुलसी की लीव्स हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि मेडिसिनल ट्रीज हैं, मेडिसिनल प्लांट है। तो वो लीव्स सर्व करती है पेड़ों की डिफरेंट बेनिफिट्स में, डिफरेंट पर्पसेस में। एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग वुड्स। अगर पेड़ आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज सिंपली गिविंग यू वुड्स फॉर फ्यूल्स, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। तो दीज आर द बेनिफिट विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच द प्लांट आर प्रोवाइडिंग टू अस. Then in love and home loyalty and forecast thought of civic good, we are planting a tree in love and home loyalty, है ना। अगर आप एक पेड़ लगा रहे हो तो आप क्या सोच के लगा रहे हो? अगर हमने अपने घर के सामने एक पेड़ लगाया तो हम क्या सोच के लगाएंगे कि पेड़ लगा रहे हैं, इट विल ग्रो एंड इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल कंट्रोल द पोल्यूशन, इट विल गिव कूल शेड. तो हमारा जो मकसद है वो क्या है, हमारा मोटिव जो है वो क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि आगे जो है पूरी सोसाइटी को ये क्या देगा, बेनिफिट देगा. हमारा जो लगाव है, हमारा प्यार है, हमारी वफादारी है इस अर्थ के प्रति, इस अर्थ के थ्रू, है ना, इस अर्थ के टूवर्ड्स, कि हमारी लॉयल्टी है, हमारा लव है कि हम यहीं पे
बॉर्न किए हैं तो हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते वी आर प्लांटिंग अ ट्री। एंड फारकास्ट ऑफ सिविक गुड, फारकास्ट मीन फोरसीन, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग ये चीज आगे देखते हैं कि पेड़ क्या करेगा, ग्रो करेगा, इट विल मल्टीप्लाई एंड इट विल सर्व डिफरेंट बेनिफिट्स टू द सिविक गुड। सिविक मीन्स टू द सोसाइटी, मीन्स वी आर प्लांटिंग अ ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो फारकास्ट क्या करते हैं, फोरसीन क्या करते हैं, आगे क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि भैया ये पेड़ जो है ग्रो करेगा और ये आगे कई जनरेशन टू जनरेशन सोसाइटी को क्या देगा, बेनिफिट देगा। सिर्फ हम ही को छांव नहीं देगा, सिर्फ हम ही को ऑक्सीजन नहीं देगा, हम ही को इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल करके नहीं देगा, बल्कि सारी प्रेजेंट जनरेशन जो है या फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनको भी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये लव एंड होम लॉयल्टी में और फारकास्ट ऑफ सिविक गुड में वी आर प्लांटिंग अ ट्री। हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड एंड हिज ब्लेसिंग्स मीन्स द पर्सन हु आर प्लांटिंग अ ट्री इन एंड हिज ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। वो पर्सन ब्लेसिंग्स अपनी किस फॉर्म में दे रहा है, अपने नेबरहुड को, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। इट वुड रिसीव बाय द नेबरहुड टू, है ना। तो जो हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ही ने पेड़ लगाया, तो हमारी पेड़ के फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में जो ब्लेसिंग्स है, इट वुड ऑल्सो रिसीव बाय आवर नेबर्स टू। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है तो हम क्या करेंगे, नेबर से मना कर देंगे, नहीं ये पेड़ हमने लगाया, इसकी कूल शेड, इसके फ्रूट्स, इसके सीड्स, इसके बेनिफिट्स तुम नहीं एंजॉय कर सकते। हम ऐसा तो नहीं करते हैं ना। वो क्या करता है कि नेबरहुड भी उसकी ब्लेसिंग्स रिसीव करता है। तो इफ वी आर प्लांटिंग अ ट्रीज, हिज ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म, द पर्सन्स ब्लेसिंग्स which he has done in the form of planting a tree would also received by the neighborhood. Then the next line is, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land. Means in the hand, empty hands, hollow hands, in our own hands, the person who is planting a tree, in his own hands lies the growth of all our land. Means सारी कंट्री का डेवलपमेंट, सारी अर्थ का डेवलपमेंट, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन ओनली हु इज प्लांटिंग अ ट्री। क्योंकि आपको ये पता है कि नेशन ग्रो फ्रॉम सी टू सी, है ना। व्हेन यू आर प्लांटिंग अ ट्री, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, प्रोग्रेस ऑफ दिस वर्ल्ड, द डेवलपमेंट, द प्रोग्रेस लाइज इनटू द सीक्रेट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, है ना। इस अर्थ की अगर आपको डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस लाना है, एक हैप्पी अर्थ, एक सेफ इन्वायरमेंट अगर आपको बनाना है, तो इट इज ओनली बाय प्लांटिंग अ ट्री, है ना। तो दैट्स व्हाई द पोएट इज रेफरिंग कि हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड्स। मींस कि उसी पर्सन के एम्प्टी हैंड्स में, हॉलो हैंड्स में लाइज कर रहा है पूरे नेशन की, पूरे ग्रोथ, डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड की, जो कि पेड़ लगा रहा है। क्योंकि पेड़ लगा रहा है तो उसी के हाथ में पूरे नेशन की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट छुपी हुई है ना। क्लियर हो गई लाइन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कोई भी लाइन, कोई भी एक्सप्लेनेशन में जरा सा भी डाउट हो तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। देन द नेक्स्ट लाइन इज, अ नेशन ग्रो फ्रॉम सी टू सी। मीन्स अ नेशन ग्रो फ्रॉम सी टू सी मीन्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। सी टू सी का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। नेशन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ग्रोथ करता है, तरक्की करता है, डेवलप करता है, प्रॉस्पर करता है। स्टेज इन द हार्ट हु प्लांट अ ट्री। So the progress of the nation from one corner to another corner is lies in the heart of that person who plant a tree, है ना। तो उस इंसान के दिल में ही पूरे नेशन की तरक्की छुपी हुई है, जिसके दिल में ये फीलिंग है, ये चाहत है, ये विलिंगनेस है ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि नेशन ग्रो करता है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, द होल डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ डिपेंड ओनली ऑफ the secret of planting a tree, only in the secret of planting a tree. If you are planting a tree, you are putting a step towards the development of the earth. जैसे कि ये नोशन आपको पता ही है, ये एक कोट भी है कि सेव अर्थ सेव ट्रीज, है ना।
कि अगर आपको अर्थ को बचाना है तो ट्रीज को बचाइए, बिकॉज ट्रीज विल कंट्रोल द पोल्यूशन एंड इट विल गिव्स यू डिफरेंट बेनिफिट्स इन डिफरेंट फॉर्म, व्हिच वी हैव रिकाउंटेड इन दिस पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री. सो पोएट ने इस थर्ड स्टैंजा में डिफरेंट बेनिफिट्स को बताया कि वी आर, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, वी आर गेटिंग saps, liquids and woods in the form of a tree, है ना, in love and home loyalty, in the forecast of the civic good, that we are foreseeing the good of the whole society, the benefit of the whole society, the blessings of the person in the form of the tree will receive by the neighborhood too, and nation from one corner to another corner lies in the hand of the person who have a feeling in his heart of planting a tree. तो ये पूरी पोएम, if you will go through the whole poem, you will find that the whole poem is all about the importance of planting a tree for the human beings. I hope this poem is clear to you all, and if you have any doubt, again I am saying you can comment me and ask me in inbox and clear your doubts. Thank you.